ٹوٹل ایکسپینسز ڈال کے 25-26 روپے پر واٹ آتا ہے. 25-26 روپے میں 1-2 روپے اگر امپورٹر رکھتا ہے, 1 روپے ٹریڈر رکھتا ہے, تو آپ کا 31-32 روپے ریٹ. امپورٹر ٹریڈر دونوں کے کمپٹیشن میں اینڈ یوزر بینیفٹ میں جا رہا ہے. فلیکسیبل سولر پینل آئیں گے, وہ ہر چیز کو ریپلیس کر دیں گے. یوٹیوبر ہیں جو اپنی ویڈیوز کے اوپر ویوز لینے کے لیے, ٹائم لینے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. اس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کو ان ٹائم میں جانا چاہیے اور اسپیشلی بائی فیشل میں جانا چاہیے. پہلے نمبر پہ جن کو, سیکنڈ نمبر پہ کینیڈین. حالانکہ پرائس میں کینیڈین اس وقت بھی پاکستان میں اوپر کھڑا ہے. اس کے علاوہ پی ٹائپ پینل میں نہ جائیں. السلام علیکم ناظرین, AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر, اور ہماری ویڈیو کا سلسلہ ہمارے ناظرین کی جو خواہش ہے اس کے مطابق سولر سے متعلق چل رہا ہے. اور سولر کے متعلق ہمارے ناظرین کے بہت سارے سوالات ہیں, ان کے جوابات کی تلاش میں ہم مختلف سولر ایکسپرٹس, سولر پہ بروکرز, ان سے ملتے رہتے ہیں اور ان کی رائے لیتے رہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے, مجاہد علی شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ اسکائی سولر کے نام سے ان کا ادارہ ہے, اور یہ سولر کے حوالے سے ان کا ایک وسیع تجربہ ہے, سولر کی مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک وسیع نظر رکھتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کے جو خاص طور پر سوالات ہیں, اور خاص طور پر کہ سولر کب تک ہمیں سستا ملے گا, اور سولر جو ہے کیا آئندہ چند دنوں میں ان قیمتوں پہ ملے گا یا نہیں ملے گا, یا ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی کہ عام صارف کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی, کیونکہ اس وقت مہنگی بجلی کی وجہ سے بہت سارے صارفین سولر پر زیادہ سے زیادہ کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں. تو ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ فائن جی, بہتر. مجاہد علی شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ سولر کے بزنس سے آپ ایک عرصہ سے وابستہ ہیں, اور ہمارے ناظرین خاص طور پر اس بات کو بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سولر کی جو قیمتیں ڈکریز ہونے کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا, ایک لحاظ سے یہ پاکستان کے شہریوں کے لیے بلیسنگ بھی ہے کہ مہنگی بجلی کا سامنا ہے, تو یہ کیسے شروع ہوا, اور اب جو کچھ افواہیں ہیں کہ یہ آئندہ چند دنوں میں یہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور سولر بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سولر کی جو قیمتیں ہیں, سولر کی قیمتیں شروع سے ہی ایسے ہی تھیں. یہ نہیں تھا کہ سولر بہت مہنگا اکوپمنٹ تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہوا یہ کہ پاکستان میں پہلے لمیٹڈ لوگ امپورٹ کر رہے تھے, اور وہ ان کے اپنے پروفٹ ہیوج تھے, بڑے لیول پہ پروفٹ کما رہے تھے. چند ایک لوگ تھے, لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں تھی. جیسے جیسے یہ سسٹم بڑھا, یہاں بجلی کی پرائسز بڑھی, لوگوں نے یہ سسٹم کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا, بزنس بڑے لیول کی طرف گیا. تو آپ کی جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے آپ کے انڈسٹری تباہ ہوئی ہے, آپ کے دوسرے لوگ ہیں, ریئل اسٹیٹ والے ہیں, ایسے لوگ جو انویسٹر ہیں وہ اس بزنس میں کافی لوگ آ گئے. جب لوگ زیادہ آئے, ہر بندے نے اپنی امپورٹ کی, تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو مارجن بہت زیادہ ہے. اس سے بڑھ کے اور لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ شروع کر دی. جو ایکسپورٹ کرتے تھے وہ اب امپورٹ میں بھی آ گئے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو ہے سولر کمپٹیشن, لوگوں کے اندر کمپٹیشن پیدا ہوا, پرائسز اوپن ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ سولر شروع سے مہنگا تھا. سولر شروع سے چائنا سے 12-13 سینٹ میں آ رہا تھا. جب 160-150 روپے پہ ڈالر تھا, تب بھی چائنا سے 12-13 سینٹ سے بائنگ ہو رہی تھی. آپ کے امپورٹر 100+ سے بھی زیادہ وہ پیسہ کما رہے تھے. تھوڑے ٹائم میں وہ مطلب ڈالرز میں یا بلین ٹریلین میں وہ ان کی وہ اثاثے بن جاتے تھے. وہ یہی تھا کہ وہ لوگ چند ایک تھے. اب لوگ آئے ہیں مارکیٹ میں, لوگوں نے زیادہ لوگ آئے ہیں, کمپٹیشن پیدا ہوا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے لاس تو کوئی آج بھی نہیں کر رہا, لاس آج بھی نہیں کر رہا. 280 روپے پہ ڈالر ہے یہ سولر پینل, اب 21-22 ہزار روپے پہ آیا ہوا ہے. لاس آج بھی کوئی امپورٹر نہیں کر رہا. عام طور پر بہت سارے بروکر کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لاس میں بیچ رہے ہیں, تو کیا وہ لاس میں ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی بھی بندہ ایسا لاس نہیں کر رہا. جو بھی امپورٹر ہے اس وقت بھی, جو بڑا امپورٹر ہے اس کی تقریباً ہے 11-11.5 سینٹ میں کی بائنگ ہے. نیکسٹ تو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جو امپورٹر چائنا ہے وہ 9 سینٹ میں دے رہا ہے. جو نیکسٹ آپ کی پرچیزنگ آئے گی نا اگلے 2-2.5 مہینوں میں, وہ 9 سینٹ میں آ رہی ہے. 9 سینٹ میں جب آپ کی آتی ہے تو یہاں ٹوٹل ایکسپینسز ڈال کے 25-26 روپے پر واٹ آتا ہے.
25-26 रुपए में 1-2 रुपए अगर इम्पोर्टर रखता है, 1 रुपये ट्रेडर रखता है, तो आपका 31-32 रुपये रेट रहेगा और ये नेक्स्ट आने वाला है। अब लोगों के जो खदशात हैं कि रेट फिर से जंप कर जाएगा, नथिंग, ऐसा कोई नहीं है। मैं हैसियत एक सोलर ट्रेडर कि मैं अपनी कौम को इस बात की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप मुतमईन रहें, मुतमईन रहें। आपका कहना एंड यूज़र बेनिफिट में जा रहा है मैक्सिमम, इम्पोर्टर ट्रेडर दोनों के कंपटीशन में एंड यूज़र बेनिफिट में जा रहा है। कौम का फ़ायदा हो रहा है ना, हमारे गरीब भाइयों का फ़ायदा हो रहा है, हमारे लोग बिजली से ताए हुए लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं अपने बेनिफिट को देखो, मैं एक बंदा हूँ, मेरे 5,000 पैनल बेचता हूँ एक महीने का, तो मेरे साथ 5,000 बंदे, कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, एंड यूज़र को फ़ायदा हो रहा है ना। ये है कि यही पैसा जब 150 रुपये डॉलर होता था तब भी 12-13% की बाइंग होती थी, तब ये प्रॉफिट 100% प्रॉफिट प्लस 100 इम्पोर्टर ये पैसा रखता था। अब ये बात ओपन हो गई है, ये है कि आज भी इम्पोर्टर लॉस नहीं कर रहा। अब पढ़े लिखे लोगों को लॉस करता है और वो भी इम्पोर्टर नहीं करता, उसका प्रॉफिट नो डाउट कम हुआ है। पहले वो अगर 200% प्रॉफिट कमा रहा था, वो आजकल 1,000-2,000 रुपये पर पैनल के ऊपर प्रॉफिट उसका आ रहा है, तो उसको तो लॉस नज़र आएगा, उसको लॉस नज़र आएगा। मुजाहिद अली साहब चूँकि बहुत ज़्यादा सच्ची सच्ची बातें करते हैं और आज हमने इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी इसीलिए रखा कि इन्होंने एक लिहाज से इसके ऊपर से नकाब कुशाई की है, जो एक लग रहा था कि पैनल इससे पहले बहुत ज़्यादा महंगे आते थे, कि इन्होंने बताया कि इंपोर्टर्स पैनल पहले भी कम कीमत पे ही ख़रीदते थे, उनकी प्रॉफिट रेशो ज़्यादा थी और बहुत सारे कारोबार जो स्लम का शिकार हुए, उनकी वजह से इन्वेस्टर का रुख सोलर पैनल्स की जानिब हुआ और उस तरह से एक एंड यूज़र को जो है एक सस्ते सोलर पैनल मिलना शुरू हुए पाकिस्तान में, और ए ग्रेड भी मिलना शुरू हुए। इससे कबल गालिबन मेरे ख्याल है ए ग्रेड पैनल कम ही आते। नहीं, उसमें ब्रदर मैं आपको बताऊं, सोलर बेसिकली पाकिस्तान में सोलर को इंट्रोड्यूस करवाया था पठानों ने। पठान आपका जो पाकिस्तान में जो पठान बिज़नेस करता है ना, वो हमेशा लो प्राइस से का लो लेवल लो चीज़ ढूंढता है, मतलब एक कम क्वालिटी की चीज़ ढूंढता है। तो वो बी ग्रेड पहले लेके आते थे। तब चंद 5-4 लोग थे, फिंगर टिप्स के ऊपर 5-4 लोग थे जो इंपोर्ट करते थे ए ग्रेड के पैनल को। तब ए ग्रेड और बी ग्रेड के पैनल में 8 से 10 हज़ार रुपये पर पैनल में डिफरेंस होता था, ठीक है। लोग इंपोर्ट ए ग्रेड को कम करते थे, बी ग्रेड की तरफ ज़्यादा जाते थे। जब पाकिस्तान में दूसरे बिज़नेस क्लैश हुए, जैसे आपकी टेक्सटाइल हो गई, इंडस्ट्री हो गई, रियल स्टेट हो गए, दूसरे मतलब बिज़नेस, इस वक्त पाकिस्तान में बिज़नेस कोई भी प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा। अभी आप यहाँ से निकले 1-2-4 किलोमीटर लोगों के इंटरव्यू करें, कोई भी बंदा खुश नहीं होगा, ये श्योर है। ये नहीं है कि वो जानबूझ के कह रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, हकीकत बात है, वो खुश नहीं होगा। अगर कोई बिजनेसमैन बिज़नेस कर रहा है, वो उसका प्रॉपर बिज़नेस नहीं चल रहा हो, चाहे आप पेंट वाले के पास चले जाएं, प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाएं, करियाने वाले के पास चले जाएं, बिज़नेस में वो खुश नहीं होगा, क्योंकि बिज़नेस में मार्जिन ही नहीं रह गए, कोई चीज़ का चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा ये बताइएगा मुजाहिद अली शाह साहब के सोलर पैनल की कीमतें, तो आपने हमारे नाज़रीन को खुशखबरी सुना दी कि जो एक खौफ की फ़ज़ा कायम हो रही है कि सोलर पैनल चंद दिनों में महंगा होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन का माहौल है और नेक्स्ट जो ट्रेड हो रही है सोलर के हवाले से वो भी इससे कम प्राइसेस पे हो रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक अफवाह कह लें या एक इशू बन गया सोलर पैनल्स के मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ के फ्लेक्सिबल सोलर पैनल आएंगे, वो हर चीज़ को रिप्लेस कर देंगे और वो उसकी एफिशिएंसी इनसे कहीं ज़्यादा होगी, और इसके अलावा वो रात को भी बिजली बनाएंगे। तो आप चूँकि सोलर एक्सपर्ट हैं और इस बिज़नेस से भी वाबस्ता हैं, आप इस हवाले से क्या कहें? ऐसा कोई सीन नहीं है। फ्लेक्सिबल सोलर ये बड़े मैं भी सोशल मीडिया देखता हूँ, बड़े आपकी जो यूट्यूबर हैं, एंकर की तो नहीं बात कर सकता, यूट्यूबर हैं जो अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए, टाइम लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये वीडियोस अपलोड करते हैं। इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके जो भी सोलर पैनल है उसको डिग्री चाहिए, ईस्ट वेस्ट, जैसे सूरज वॉल करता है वैसे ही आपके सोलर
पैनल को डिग्री चाहिए। मूवेबल जो सोलर है या फ्लेक्सिबल सोलर है, ये बेसिकली चंद एक जो आप जब आपने किसी पिकनिक पॉइंट पे जाना है, वहाँ आप शीट लंबी करें, अपनी बैटरी चार्ज करें, रात को वो आपको बैकअप देगी। ये उस पर्पज़ के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। अदरवाइज़ ना आपकी ये पाकिस्तान में जैसे ये समर सीज़न में ना एयर प्रेशर को आपकी ये फेस कर पाएगी, ना इसके लिए कोई मूविंग स्ट्रक्चर है, ना इसका कोई फ्यूचर है। और अभी तक पाकिस्तान में किसी भी बंदे ने या किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर ऐसी कोई लेमिनेशन आपने देखी है फिज़िकली? अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसने गेम कर लेनी है, उसने मार्केट में जगह बनानी है, तो लोग अडॉप्ट करते। ये सोशल मीडिया की हद तक क्यों अडॉप्ट किए हुए? ये जस्ट फेक न्यूज़ हैं, ये इस फेम लेने। हाँ, इसका बस अपने व्यूवर लेने के लिए, इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप चूँकि इस बिज़नेस से अरसे से वाबस्ता हैं और इसके तमाम जो है इसरार और रमूज़ से भी वाकिफ़ हैं, ये बताइएगा कि लोगों का एक आम कंज्यूमर का एक सवाल होता है, उसने जब प्लेट ख़रीदनी है तो आजकल के माहौल में जो प्लेटें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं, इनमें सब एफिशिएंसी के एतबार से, हमारे इस माहौल के एतबार से, हमारी जोग्राफियाई सूरत हाल के एतबार से कौन सी सोलर प्लेट जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट समझते हैं? देखिए ब्रदर, ऐसा है कि सोलर पैनल पहले तो लोगों को स्टार्ट में पता नहीं होता था कि पाकिस्तान के लिहाज से कौन सा पैनल सूटेबल है। पाकिस्तान में गर्म मुल्क है, यहाँ जो है पहले स्टार्ट में आने थे सोलर पैनल आते थे मोनोफिशियल, ठीक है, वो पी टाइप पैनल होते थे। इतनी जिद्दत नहीं आई थी उसमें उस वक्त सोलर पैनल में। अब पाकिस्तान में जब से आने लगे हैं एन टाइप के पैनल, एन टाइप प्लस बाईफिशियल पैनल का बड़ी अच्छी चीज़ है। स्ट्रक्चर वाइज मतलब क्वालिटी वाइज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। लोगों को एन टाइप में जाना चाहिए और स्पेशली बाईफिशियल में जाना चाहिए। बाईफिशियल पैनल खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाए, फिर भी आपका वर्किंग पोजीशन में रहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहती है। मोनोफिशियल पैनल जब भी आपका कोई क्रैक आता है तो गाड़ी की विंड स्क्रीन की तरफ ब्लास्ट कर जाता है, वो आपके 100% पैसे ज़ाया चले जाते हैं। बाईफिशियल आप लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूँगा। क्वालिटी के हिसाब से, एम्पेयर वोल्ट एफिशिएंसी के हवाले से मैंने पैनल देखा है एन टाइप में पहले नंबर पे जिनको, सेकंड नंबर पे कैनेडियन। हालांकि प्राइस में कैनेडियन इस वक्त भी पाकिस्तान में ऊपर खड़ा है। वो रीज़न ये है कि क्योंकि कैनेडियन की मैन्युफैक्चरिंग कम है। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कम होती है तो आगे डिमांड तो है, तलब रसद वाला मसला है। अदरवाइज़ पैनल की क्वालिटी में कोई नहीं है कि वो प्राइस की वजह से वो ऊपर खड़ा है, तलब रसद की वजह से वो ऊपर खड़ा है। जिनको एन टाइप टॉपकॉन बाईफिशियल में बहुत लेवल का ब्रांड है, मैं अपने भाइयों को कहूँगा जिन इसके अलावा पी टाइप पैनल में ना जाएं, क्योंकि आजकल लोग नेट मीटिंग करवा रहे हैं। नेट मीटिंग में ये कि आप लोगों को यूनिट्स चाहिए होते हैं। यूनिट्स लेने के लिए आपको वो पैनल सेलेक्ट करना चाहिए जो आपका सर्दियों गर्मियों के लिए विजिबल पैनल हो, कम रोशनी में भी आपको परफॉर्मेंस दे, आपको रिटर्न यूनिट आपके बैक में दे। तो उस सिलसिले में एन टाइप पैनल आपको यूज़ करना चाहिए बाईफिशियल में। अच्छा, पैनल्स की तो बात हो गई। पैनल्स की तो इस वक्त मार्केट भी बड़ी गर्म है और लोग भी पैनल्स की ख़रीदारी में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, लेकिन सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको इन्वर्टर भी चाहिए होता है। अगर आप नेट मीटरिंग करते हैं तो उस तरह के नेट मीटरिंग के सिस्टम के लिए भी, और अपनी इक्विपमेंट को, अपनी एसेसरीज़ को, अपना होम अप्लाइंसेस को चलाने के लिए भी आपको इन्वर्टर चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वोल्ट से तो कम ही चीज़ें चलेंगी और बल्कि जलेंगी ज़्यादा। तो इन्वर्टर की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में कि इस वक्त इन्वर्टर की शार्टेज भी है और महंगा भी है, इसको आप एज ए ट्रेडर किस नज़र से देखते हैं कि इन फ्यूचर में क्या इन्वर्टर की फ़राहमी पाकिस्तान में आसान होगी या इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इन्वर्टर पाकिस्तान में स्टार्ट में इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी के नहीं आते थे, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्ट होता था सोलर के ऊपर। अब रिसेंट लास्ट 5-6 साल से अच्छे इन्वर्टर आने शुरू हुए हैं। वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर, प्योर 100% साइन वेव इन्वर्टर आने शुरू हुए हैं, जिस वजह से वो बिजली प्रॉपर वापडा के लेवल की जैसी बिजली बनती है, लोगों के इक्विपमेंट प्रॉपर चलते हैं, ख़राबियाँ पैदा नहीं होती। इन्वर्टर की प्राइस ऊपर जाने की रीज़न ये नहीं है कि कोई इन्वर्टर में कोई यहाँ पे ये हुआ है, लोगों ने कौम डरी हुई थी
पैनल की प्राइस 135 रुपये पर वाट से जब नीचे आ रही थी, 70, 75, 80, 65, 60 इस तरह नीचे आ रही थी, लोगों ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोगों ने बहुत सारी बाइंग कर ली, खाली पैनल की बाइंग की। बहुत सारे लोगों ने पैनल ही परचेज़ कर लिया, किसी ने इन्वर्टर परचेज़ नहीं किया, इंपोर्ट नहीं हुई, फ्रेश इंपोर्ट नहीं हुई। जैसे ही अब गर्मी आई है, लोगों को इन्वर्टर चाहिए, इन्वर्टर के बगैर तो वो सिस्टम उनके पैनल बेकार हैं, तो उसकी वजह से ये शॉर्टेज पैदा हुई है। इंशाल्लाह अगले 2-3 माह बाद में 2-3 माह बाद ये इन्वर्टर वापस उसी अपनी प्राइसेस पे आ जाएंगे। ये नहीं है कि पीछे से चाइना से इन्होंने को रेट्स बढ़े हैं, ये भी तलब रसद वाला मामले में आया है कि लोगों ने पहले पैनल परचेज़ किए, अब इन्वर्टर परचेज़ करने लग गए हैं। अब नॉर्मल कस्टमर भी इन्वर्टर ले रहा है, जिनके पास पहले से पैनल परचेज़ किया हुआ था वो भी इन्वर्टर परचेज़ कर रहा है। ये डिमांड की वजह से शॉर्टेज पैदा हुई है। नेक्स्ट 2-3 माह बाद ये इन्वर्टर भी अपनी वापसी कीमत पे आ जाएंगे और पैनल भी इंशाल्लाह इससे कम कीमत पे मज़ीद नेक्स्ट मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुजाहिद अली शाह साहब, जिन्होंने बहुत सारे सोलर एनर्जी सिस्टम के हवाले से हमारे नाज़रीन के सवालात थे, उनके जवाबात भी दिए और बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाया। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।